Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Good morning, everyone. सबको सुप्रभात। We are so happy to see you in this online service. हम आपको इस ऑनलाइन सर्विस में देखकर बहुत खुश हैं। It's always good to hear the message of Jesus. यीशु का संदेश सुनना हमेशा अच्छा होता है। So the Bible says the word of God is so active and living. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सक्रिय और जीवित है। So whenever we come to the word of God, we will be taught His wonderful love and compassion on our lives. जब भी हम परमेश्वर के वचन तक आते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और करुणा को सीख सकते हैं। God is good all the time. परमेश्वर हर समय अच्छा है। We need to praise Him and we need to thank Him. हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए और हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। The scripture clearly says it is good to thank the Lord. शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है। And we know this is the day that the Lord has made and we have to rejoice in it. और हम जानते हैं कि यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें आनंद लेना है। And this morning I'm sure that God is going to speak to you. और आज सुबह मुझे यकीन है कि परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। No matter what the trouble that you are facing कोई बात नहीं, आप किस परेशानी का सामना कर रहे हो and no matter what the hardship that you are going through, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कठिनाई से गुजर रहे हैं, God's word will comfort you. परमेश्वर का वचन आपको आराम देगा। Millions of people have been blessed by the word of God लाखों लोग परमेश्वर के वचन से आशीषित हुए हैं because they receive the word of God into their hearts. क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर का वचन ग्रहण किया। Dear friends, listen to me. Whenever we come to His presence, प्रिय मित्रों, मेरी बात सुनो। जब भी हम उनकी उपस्थिति में आते हैं तो we have to accept the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना होगा। Then only we will experience God's miracles. तभी हम अनुभव करेंगे परमेश्वर का चमत्कार। Let us read Psalm 23 and verse 4. आइए हम भजन संहिता 23:4 में पढ़े। Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सांटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। This is one of the incredible psalms written by David. यह दाऊद द्वारा लिखा गया आश्चर्यजनक भजनों में से एक है। The book of Psalms is the largest and perhaps most widely used book in the Bible. भजन संहिता बाइबल में सबसे बड़ी और शायद सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पुस्तक। So all the Psalms are full of personal experiences of God's people. इसलिए सभी भजन परमेश्वर के लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों में से भरे हुए हैं। The Bible has been written in two ways. बाइबल दो तरह से लिखी गई है, Divine inspiration and divine revelation. दिव्य प्रेरण और दिव्य रहस्योद्घाटन। When we come to the books like Psalms and Proverbs, they were written by the divine inspiration. जब हम भजन और नीति वचन जैसी पुस्तकों की बात करते हैं तो वे ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई थी। And the book of Revelation, something spectacular book that everyone should read, it was written by divine revelation. और रहस्योद्घाटन की किताब कुछ शानदार किताब है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। So we need to believe that every word and every verse that is written in the Bible inspired by Holy Spirit. इसलिए हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि बाइबल में लिखे गए प्रत्येक शब्द और प्रत्येक पद पवित्र आत्मा से प्रेरित है। So here David was expressing some beautiful and incredible events happened in his life. तो यहाँ दाऊद ने अपने जीवन में घटी कुछ खूबसूरत और अविश्वसनीय घटनाओं को व्यक्त कर रहे थे। So the Bible clearly says
that David made a statement, "The Lord is my shepherd, and I shall not be in want." बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि दाऊद ने एक कथन दिया था कि प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कमी नहीं होगी। So Psalm 23 is a very personal psalm. भजन 23 एक बहुत ही व्यक्तिगत भजन है। There are no references to we, us, they, but only I and my and me. वहाँ हमारा, हमें और वे का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन केवल मैं और मेरा है। Doubtlessly, this psalm is the testimony of David. निर्देह यह स्तोत्र दाऊद की गवाही है। So he was talking about how he was comforted by God in the times of trouble. तो वह बात कर रहा था कि मुसीबत के समय में परमेश्वर ने उसे कैसा शांति दिया। And he placed his confidence on God who never left him. उसने अपने आत्मविश्वास परमेश्वर पर रखा जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा। And he really believed in God. और वह वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करता था। So, since the Lord is my shepherd, I don't have any need to be met. इसलिए क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। Because he is the one who takes care of me in each and every situation. क्योंकि वह हर स्थिति में मेरा ख्याल रखता है। So he experienced God's supernatural presence in various ways. इसलिए उसने विभिन्न तरीकों से परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति का अनुभव। So God leads me to green pastures. और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे हरी चराइयों की ओर ले जाते हैं। And he said that God leads me to the quiet waters. और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे सुखदाई जल में ले जाता है। Dear friend, if you are looking for peace and comfort and confidence, I would like to request you to come to Jesus this morning. प्रिय मित्र, यदि आप शांति, आराम और आत्मविश्वास की तलाश में हैं, तो आपसे आज सुबह यीशु के पास आने का अनुरोध करना चाहता हूँ। Come to Jesus with a humble heart, नम्र मन से यीशु के पास आओ, because he will never ever deny you. क्योंकि वह आपको कभी मना नहीं करेगा। He leads you and he guides you. वह आपका मार्गदर्शन करता है और सुराग देता है। And I would like to let you know that God, your God, will never ever disappoint you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। So quiet waters or still waters talk about God's peace that we can receive through Jesus Christ. शांत जल परमेश्वर की शांति के बारे में बात करता है, जिसे हम यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। So when Jesus came into this world, he said, "Come to me, all who are weary and burdened, I will give you rest." तो जब यीशु इस संसार में आए तो उसने कहा, मेरे पास आओ जो थके हुए और बोझ है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus is our provider. यीशु हमारा प्रदाता है। No matter what you need, he can provide you this morning. फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए, वह आज सुबह आपको प्रदान कर सकता है। Nowadays, people, they strive for peace. आजकल लोग शांति के लिए प्रयास करते हैं। And they are looking for peace in different ways. और वे अलग अलग तरीकों में शांति की तलाश में हैं। It is very good to know that people, they are looking for peace, but unfortunately they are looking for it in wrong places. यह जानकर अच्छा लगा कि लोग शांति की तलाश में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलत जगह पर देख रहे हैं। People search for peace in entertainment centers. लोग मनोरंजन केंद्रों में शांति की तलाश करते हैं। And people, they look for peace in movies and daily serials. और कुछ लोग फिल्मों और दैनिक धारावाहिकों में शांति की तलाश करते हैं। They are looking for peace in some parks and amusement places. और कुछ लोग पार्कों और मनोरंजन स्थलों में शांति की तलाश में हैं। But unfortunately, they couldn't get peace in those places. लेकिन दुर्भाग्य से उन जगहों पर उन्हें शांति नहीं मिल सकी। So their desire was good, but the places that they were searching for were wrong.
तो उनकी इच्छा अच्छी थी, लेकिन वे जिन जगहों की तलाश कर रहे थे वो गलत थे। When you make Jesus as your shepherd, He is the one who provides a true peace and happiness in your life. जब आप यीशु को अपना चरवाहा बनाते हैं तो वही आपके जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्रदान करता है। So dear friends, when we go through verse 4, David was sharing his experience while he was walking in a valley of shadow of death. अतः प्रिय मित्रों, जब हम पद 4 को पढ़ते हैं, दाऊद अपने अनुभव को साझा कर रहा था जब वह मृत्यु की छाया की घाटी में चल रहा था। So the same person who was taken to green pastures, he was going through the valley of shadow of death. तो वही व्यक्ति जिसे हरी भरी चरवाहियों में ले जाया गया था, वह मृत्यु की छाया की घाटी से गुजर रहा था। Some people question why this happened. लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? When God is standing by my side, why should I suffer? जब परमेश्वर मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे क्यों भुगतना चाहिए? When the Bible says that God is with us, why should I go through the valley of shadow of death? जब बाइबल कहती है कि ईश्वर हमारे साथ है तो मृत्यु की छाया की घाटी से क्यों गुजरूं? Why should I need to go through a sickness and disease? मुझे बीमारी और व्याधि से क्यों गुजरना चाहिए? Why I am suffering from financial crisis? मैं आर्थिक संकट से क्यों जूझ रहा हूँ? Why sometimes I am going through shame and blame? क्यों कभी-कभी मैं शर्म और दोष के दौर से गुजर रहा हूँ? But here the Bible says our God is not only with us on the mountain tops, but He is with us even in the deep valleys. लेकिन यहाँ बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर ना केवल पहाड़ों की चोटियों पर हमारे साथ है, बल्कि गहरी घाटियों में भी हमारा साथ है। God's presence makes a big difference in our life. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। And you can claim His wonderful presence whenever you want. और आप जब चाहे उनकी अद्भुत उपस्थिति का दावा कर सकते हैं। And the question is, why would the good shepherd allow him to walk in the valley of shadow of death? और प्रश्न यह है कि भला चरवाहा उसे मृत्यु की छाया की घाटी में चलने की अनुमति क्यों देगा? Listen to me, dear friends. Sometimes we don't learn lessons at green pastures. मेरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, कभी-कभी आप हरे चरवाहियों में सबक नहीं सीखते हैं। There will be some times where we can forget our God because of our plentiness. कभी ऐसा होगा जहां हम अपनी बहुतायत के कारण अपने परमेश्वर को भूल सकते हैं। And we cannot really feel His awesome presence in our lives. और हम वास्तव में अपने जीवन में उसकी अद्भुत उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। That's the reason God allows some pain and sufferings in our lives so that we can feel His intimate relationship. यही कारण है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ दर्द और कष्ट देते हैं ताकि हम उनके अंतरंग संबंध को महसूस कर सकें। So if you are walking in the valley of shadow of death this morning, I would like to request you to focus on Jesus. यदि तुम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चल रहे हो, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप यीशु पर ध्यान केंद्रित करें। So in the Bible we see the beautiful connection between God's sovereignty and man's responsibility. इसलिए बाइबल में हम ईश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की जिम्मेदारी के बीच सुंदर संबंध देखते हैं। God is sovereign. ईश्वर सार्वभौम है। He can do anything at any time to any extent. वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक। And the scripture clearly says that nothing is impossible with our Lord and Savior. और शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। Your problem may be very bigger to you, but it's not to our God. आपकी समस्या आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन यह हमारे परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। As we know that our Lord is sovereign, we need to understand that we need to fulfill our responsibility also. इसलिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर सर्वभौम है, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करने की जरूरत है। So when David walked in the valley of shadow of death, what did he do?
जब दाऊद मृत्यु की छाया की तराई में चला तब उसने क्या किया? The first thing, he stayed in God's presence. सबसे पहले वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। He never gone away from the presence of God in the valley of shadow of death. घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलते हुए परमेश्वर की उपस्थिति से कभी दूर नहीं गया। When a problem confronts your life or when you hit by a trouble, please never leave the presence of God. जब कोई समस्या आपके जीवन में आती है, जब आप किसी मुसीबत से टकराते हैं तो कृपया परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कभी ना छोड़ें। In fact, you must come closer to God in that situation. आपको उस स्थिति में परमेश्वर के करीब आना चाहिए। God will never leave you nor forsake you. That's what the Bible says. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको त्यागेगा, यही बाइबल And कहती His है। presence is with you. और उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। God says to Moses, Moses, my presence shall come with you. परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ आई। If you are in a hospital room, you can claim God's presence over there. यदि आप अस्पताल के कमरे में हैं तो आप वहां परमेश्वर की उपस्थिति का दावा कर सकते हैं। If you are in a prison, you can claim God's presence over there. यदि आप जेल में हैं तो आप वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का दावा If कर you are सकते हैं। traveling, you can claim God's presence over there. यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप वहां परमेश्वर की उपस्थिति का दावा कर You सकते may हैं। be in a place where no other person could reach you. आप ऐसे जगह हो सकते हो जहां कोई दूसरा व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता। So the Bible says God's presence is available to you at any time. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए किसी भी समय So उपलब्ध when David walked in the valley of shadow of death, he stayed in God's presence and experienced the fullness of power of God. जब दाऊद घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चला तब वहां परमेश्वर की सन्निधान में रहा और परमेश्वर की शक्ति की परिपूर्णता का अनुभव किया। Hebrews chapter 13 and verse 5, the Bible says, इब्रानियों अध्याय 13 और 5 में बाइबल कहती है, and verse 6 also, और 6 में भी, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। So we can confidently say, the Lord is my helper and I will not fear what can man do to me. तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है और मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरे साथ क्या कर सकता है। So many times we need to say that God is my helper. इसलिए कई बार हमें यह कहने की आवश्यकता होती है कि ईश्वर मेरा सहायक When you है। pronounce it by your mouth, you will see the power of God flow into your life. आप इसका उच्चारण अपने मुंह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ईश्वर की शक्ति प्रवाहित होगी। And second thing we need to understand that David saw God's power in the valley of shadow of death. और दूसरी बात हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दाऊद ने घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी परमेश्वर की शक्ति को देखा। He said, the rod and staff of God comforts me. उसने कहा कि सोंटे और परमेश्वर की लाठी मुझे शांति देती है। So he experienced God's power in that valley. उसने उस घाटी में परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया। Dear friends, listen to me carefully. Our God is not only the God of love, but He is the God of power. प्रिय मित्र, मेरे बात ध्यान से सुनो। हमारा परमेश्वर केवल प्रेम का प्रदाता ही नहीं, लेकिन वह शक्ति भी हमको देंगे। With that power, He can deliver His people. उस शक्ति से वह अपने लोगों को छुड़ा सकता है। With that power, He can break every chain and bondage in your life. शक्ति से वह अपने जीवन की हर जंजीर और बंधन को तोड़ सकता है। You may be going through an addiction this morning शायद आप कुछ व्यसनों से गुजर रहे होंगे and wondering who can deliver me from this addiction. और सोच रहे होंगे कौन मुझे छुड़ाएगा। If you are suffering from unbelief and wondering who can lead me to the faith on God. यदि आप अविश्वास से पीड़ित हैं और सोच रहे होंगे कि मुझे ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कौन ले जा सकता I would है, like to suggest you as a man of God to depend on God's power. मैं परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का शक्ति पर निर्भर रहने का सुझाव देना चाहूँ। And He gives you
power to overcome every situation that you are facing this morning. और वह हर स्थिति से उबरने की शक्ति देंगे जिसे आज सुबह आप सामना करते होंगे। And what we can say, it is the power from above. और वह शक्ति ऊपर से आती है। This is not the power that people give. यह शक्ति मनुष्य हमें नहीं देते हैं। It is not the power that we get from the food that we eat every day. यह शक्ति हम भोजन करने पर हमको प्राप्त होने वाला नहीं है, But it is the power of God. लेकिन यह परमेश्वर की शक्ति है। It is the power from above. यह ऊपर से आने वाली शक्ति है। When we read the New Testament, जब हम नया नियम पढ़ते हैं, all the disciples of Jesus were experienced the same experience that David experienced in his life. यीशु के शिष्यों जो अनुभव किया है वही दाऊद ने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। Actually, they were in a fear when Jesus Christ was arrested. दरअसल वे डर में थे जब यीशु मसीह ने गिरफ्तार किया गया था। So when Jesus Christ was arrested in the Garden of Gethsemane, all these disciples, they fled from that place. इसलिए जब यीशु मसीह को गेत्सेमने के बगीचे में गिरफ्तार किया गया था, वह सब शिष्य वहां से भाग गए। Except John, all other disciples gone away from God. यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब शिष्यों वहां से भाग गए। So they had a fear in their hearts. उनका मन में एक भय था। They were going through the same situation, the valley of shadow of death. वह सब उसी स्थिति से गुजर रहे थे और अंधकार से भरी हुई तराई। But the Bible says on Sunday morning Jesus rose again from the लेकिन dead. बाइबल कहती है रविवार की सुबह यीशु मसीह मृत्यु में से जी But उठा। on the evening Jesus met them. लेकिन शाम को यीशु मसीह उनसे मिले And they were in a closed room and worrying about the situations that were happening around them. और वे एक बंद कमरे में थे और अपने आसपास हो रहे हालत की चिंता कर रहे। And here is a comforting message that Jesus went into that room and appeared to them and gave them peace. और यहाँ एक सांत्वनादायक संदेश है कि यीशु उस कमरे में गया और उन्हें दर्शन दिया और उन्हें शांति। And right after that incident, Jesus, he appeared to so many people for 40 days. और उस घटना के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक सारे लोगों के सामने प्रकट And on the day when Jesus Christ was ascending to the heaven, और उस दिन जब यीशु मसीह स्वर्ग के लिए आरोहण हुए, and he said, "You must wait in Jerusalem. That's where you shall get the power from above." और उसने कहा आप यरूशलेम में ही ठहरना, वहीं आप ऊपर से शक्ति पाएंगे। When the Holy Spirit has come upon you, you shall receive power from above. पवित्र आत्मा आप पर आएंगे तो आप शक्ति पाएंगे And you will be my witnesses. और आप मेरे गवाह होंगे। So Jesus never left them and said that you left me in the time of trouble. यीशु मसीह ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी कहा नहीं कि तुम संकट के समय मुझे छोड़कर चले गए। And in fact, he said, I will give you power from above that will help you to become my witnesses even in, some tough times in your life. और उसने कहा कि मैं ऊपर से शक्ति दूंगा जिससे आप अपने कठिन समय में भी मेरे गवाह होंगे। As Jesus promised on the day of Pentecost, the power was given to all his disciples. जैसे यीशु ने उन्हें वादा किया था, पेंतेकोस्त के दिन उनके शिष्यों को उनकी शक्ति दी गई है। And they received the power from above. और उन्हें ऊपर से शक्ति प्राप्त हुई। And when we go through the book of Acts, the Bible tells about how these disciples worked for the expansion of God's kingdom. हम बाइबल में प्रेरितों के किताब में देख सकते हैं कि यह शिष्य परमेश्वर की राज्य स्थापना के लिए कैसे काम किए। And most of them have become martyrs for the kingdom of God. उनमें से अधिकांश परमेश्वर के राज्य के लिए शहीद हो गए। How could they get that strength? उन्हें वह ताकत कैसा मिल सकती थी? When they received the power from above, they became strong witnesses unto the kingdom of God. जब उन्होंने ऊपर से शक्ति प्राप्त की तो वे परमेश्वर के राज्य के प्रबल गवाह Dear बने। friends, if you need power from above this morning, Jesus Christ is willing to give you. मित्र, यदि आप
ऊपर से शक्ति चाहते हैं, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। So many people write to us every day and say, Pastor, we can't overcome this problem with our strength. बहुत सारे लोग हमें लिखते हैं और कहते हैं, पास्टर, हम अपना शक्ति से इस समस्या को दूर नहीं कर सकते। We cannot come out of our suffering with our own knowledge and wisdom. हम अपने ज्ञान से इस दुखों से बाहर नहीं निकल सकते। We truly need God's leading and God's power. हमें वास्तव में परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। If you desire that, God is willing to empower you this morning. आप चाहते हैं तो परमेश्वर आज सुबह आपको सशक्त बनाने के लिए तैयार है। This psalm, has a beginning of God's leading, and here we see God was with that person even in the valley of shadow of death. स्तोत्र परमेश्वर की अगुवाई की शुरुआत है और यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनके साथ था, घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी। Since God is with me and His power is available to me, I will fear no evil. क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है और उसकी शक्ति मेरे लिए उपलब्ध है, इसलिए मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। Can you say that this morning? क्या आप आज सुबह कह सकते हैं? I would like to encourage each and every one of the people watching this program from all over. और मैं इस कार्यक्रम देखने वाले हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। God is on your side. परमेश्वर तुम्हारा पक्ष है। He has a care and concern. वह आपका देखभाल करेंगे और आपका चिंता है। And He will never leave you nor forsake you. और वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें त्यागेंगे। If you seek Him with a humble heart, you shall receive Him. यदि आप नम्र मन से ढूंढेंगे तो उसे आप पाएंगे। And David was supremely confident when he says, surely the goodness and mercy follow me all the days of my life. और दाऊद को परम विश्वास था कि जब वह कहता है कि निश्चित रूप से अच्छाई और दया मेरे जीवन में सभी दिनों में मेरा पीछा करती है। Hallelujah. Surely goodness and mercy of the Lord always follow me. परमेश्वर की स्तुति, निश्चय ही प्रभु की कृपा और कृपा सदैव मेरा पीछा चलती है। Because God is the God of goodness. क्योंकि परमेश्वर अच्छाई का प्रदाता है। He is the merciful God. हमारा परमेश्वर दयालु है। And His love and His mercy follow you all the days of your life. का प्रेम और उसकी दया जीवन भर तुम्हारा पीछे चलती है। Dear friends, I would like to conclude my message. प्रिय मित्र, मैं अपना संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। But before that, I would like to ask you to focus on God whenever you walk in the valley of shadow of death. लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का और अपना ध्यान केंद्रित करना भी आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलते हैं। You may be suffering from a sickness this morning. सुबह आप किसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। You may be facing some typical challenges in your life. अपने जीवन में कुछ सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। You may be having troubles from your family members. आपको अपने परिवार के सदस्यों से परेशानी हो सकती है। You may be confronting a problem in the place that you work. जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ आप समस्या का सामना करते होंगे। You may be going through a tough situation handling a crisis in your family. किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। आपके परिवार में संकट को संभालना कठिन हो सकता है। No matter what the problem that you are facing, stay focused on God. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। When you focus on God, you shall see amazing leading and blessings of God. जब आप परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप परमेश्वर का अद्भुत नेतृत्व और आशीर्वाद देखेंगे। And He leads you and He guides you. और वह आपकी अगुवाई करेंगे और वह आपकी मार्गदर्शन करेंगे। You are not too far away from God's love. आप परमेश्वर की प्रेम से बहुत दूर नहीं हैं। The love of Jesus is always available to you. यीशु मसीह का प्यार हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। The word of God says, for God so loved the world. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
He took your place on the cross of Calvary and died on your behalf. उन्होंने कलवरी के क्रूस में तुम्हारे स्थान ले लिया और तुम्हारे लिए वह मरे। Whenever you see the cross is the beautiful expression of God's love. जब भी आप क्रूस को देखते हैं तो क्रूस परमेश्वर का प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति है। One thing I like so much. एक चीज मुझे बहुत पसंद है। Cross is not only the place where God has given promises, but it is the place where God kept His promises. क्रूस केवल वह स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है, बल्कि वह यह स्थान है जहां परमेश्वर ने अपने वादों को पूरा किया। Cross is the place where all the promises of God were kept. क्रूस वह जगह है जहां परमेश्वर के सभी वादे रखे गए थे। Because Jesus died for you on the cross, you shall have salvation. क्योंकि यीशु आपको मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस पर मरे। So our God is not only a promise maker, but He is the promise keeper. इसलिए यीशु केवल वादा करने वाला ही नहीं, बल्कि वह वादा निभाने वाला है। Keep all these things in your mind and start praising God and inviting His presence into your heart. इन सभी बातों को ध्यान में रखें और परमेश्वर की स्तुति करना और उसकी उपस्थिति को अपने हृदय में आमंत्रित करना शुरू करें। He is not only the God who can lead you to the mountain tops, but He is with you even in the deep valleys of your life. परमेश्वर आपको पर्वतों की चोटी पर ही नहीं ले जाएंगे, बल्कि आपको आपके जीवन में गहरी घाटियों में भी आपके साथ रहेंगे। Close your eyes and I would like to pray. आपके आंखें बंद कीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, we thank you for this wonderful morning. परम पिता, इस शानदार सुबह के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। Thank you, Lord, for the word that you have given us. जो वचन आप हमें दिए हैं उसके लिए धन्यवाद Your करता हूँ। word is our encouragement, आपका वचन हमें प्रोत्साहित करता है and it inspires us in every situation. और हमारे हर परिस्थिति में प्रेरित करता है। Thank you, Lord, for your leading and guidance in the life of के David. जीवन में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ। And we thank you, you are with us even today. और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज भी आप हमारे साथ हैं। Because your word says Jesus Christ is the same today, yesterday, today and forever. क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह आज, कल और हमेशा वही है। According to Philippians 4:19, meet all their needs in the riches of your glory. फिलिपियंस 4:19 के अनुसार आपकी महिमा में उनकी सभी जरूरतों को पूरा करें। Fill them with thy love and with thy blessed hope. परमेश्वर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन लोगों पर अपनी शक्ति और अपनी आशीर्वाद बरसाए। Help them to be focused on you, Lord, even though when they walk in the valley of shadow of death. उन्हें आप पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे जब भी वह गौर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चले। And I pray for all the people who never experienced salvation in their lives, Father, give them an opportunity to turn back to you. और मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में कभी मोक्ष का अनुभव नहीं किया। पिता, उन्हें आपके पास वापस आने का मौका दो। Save them, Lord. उन्हें बचाओ प्रभु, Forgive them. उन्हें माफ कर दे, Cleanse them and wash them with thy blood. उन्हें शुद्ध करो और अपने खून से धो दे। Lord, I प्रभु। pray for the people who are going through sicknesses and diseases right now. परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी से गुजर रहे हैं। Lord, heal them as you are our healer. परमेश्वर, आप हमारे चंगा करता है, उन्हें चंगा And कर। I pray for those who are having financial troubles and crisis. और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्हें आर्थिक परेशानी और संकट हो रहा है। Lead them to the place where they can be a great blessing to so many people around them. उनको उस स्थान पर ले जाओ जहाँ उनके आसपास के लोगों को वह आशीर्वाद कारक रहे। Lord, help my brothers and sisters to grow more in you, Lord. परमेश्वर, मेरे भाइयों और बहनों को आप में और अधिक बढ़ने में मदद करें। In the time of this pandemic, oh God, protect each and every family and individual. इस महामारी के समय परमेश्वर प्रत्येक परिवार और व्यक्ति की रक्षा करो। We always thank you and worship you and praise you for your goodness and mercy in our lives. हम हमेशा आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी पूजा करते हैं और हमारे जीवन में आपकी भलाई और दया के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। We love you and we thank you. हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम पर
आमीन। परमेश्वर का आदमी डॉक्टर जॉन वेस्ली जी उनका चुना हुआ पात्र है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को यीशु मसीह के शुभ समाचार से प्रभावित करते हैं। वह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रूसेड निर्वाहित करते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहे हैं और कई दिलों और परिवारों को छू रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बाइबल के तथ्यों और जीवन को बदलने वाले संदेश सिखाने के लिए 65 से अधिक देशों की यात्रा की और परमेश्वर के वचन में उनका पालन पोषण किया जा रहा है। जॉन वेस्ली फाउंडेशन, पास्टर्स लीग ऑफ इंडिया, बाइबल वंडर्स मीडिया मिनिस्ट्रीज, क्रिश्चियन डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्रिश्चियन कपल्स क्लब, यंग होली टीम, क्रिश्चियन कर्मचारी और बिजनेसमैन फेलोशिप, शकीना प्रकाशन, जॉन वेस्ली अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालयों के विभिन्न अंग है। वह क्राइस्ट पूजा केंद्र में पास्टर है, जहां हर रविवार को 10,000 से लोग परमेश्वर की पूजा करते हैं।